So very good evening to all of you. Good evening, sir. So this is officially the first class we are going to start. The last was the orientation in which we have discussed about the resources as well as the syllabus. And from today, we will start with geomorphology. And the first topic which we are going to deal with is origin of universe and origin of Earth as well as other planet. There will be certain topic which is the foundation stone for this particular subject, and you will also get question from this particular topic, origin of universe and origin of planet as well as Earth. Apart from it, these are the topic which is very important in your general study syllabus. So let's begin this particular topic, and we'll start with Immanuel Kant's gaseous hypothesis. I have notes also, as I suggested. The book which you will follow is Savindra Singh. And in Savindra Singh, there is a physical geography by Savindra Singh. This is the book which you should follow for this particular topic. So let me share the notes. And there is a compilation of the theory and the PDF in front of you. I hope the PDF is visible now. Is it fine? Yes, sir, it is visible. Area of origin of Earth. Okay. And in this way, we will cover the class along with class notes. Sometime I will go for dictation, sometime I will go for PDF, and we'll go through the important, what you can say, principles which you should understand. Okay, so let's begin this notes. And the first topic which we are going to cover is theory of origin of Earth as well as universe. Fine. So first such theory, it was given by Immanuel Kant, and this is what called as gaseous hypothesis. Immanuel Kant, he was a German philosopher. If you see this theory, he talked about supernatural creation. First thing he talked about, there was a supernatural creation. Supernatural creation means the things which has been created, it was created by God. So supernatural creation. Again, when we talk about something supernatural, then we are actually defying science. So this is not a science, that is supernatural creation. So he talked about primordial, what you can say, creation, supernaturally created primordial hard matter. इनके हिसाब से क्या था बच्चे, जो कुछ शुरुआत में था, that was hard matter and it was supernaturally created. That means the process of its creation was not known, and he was not explaining the process of creation of creation of matter. He was not explaining this process of creation of matter. इन्होंने बात ही खत्म कर दी कि भाई सुपरनेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल हार्ड मैटर था. इनका ये एजम्पशन है, एक्सियोम है. ठीक है, एजम्पशन कह लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं मान रहा हूं, वो सही है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एजम्पशन, और वी कॉल इट एक्सियोम आल्सो. तो आप देखेंगे इनिशियल जो थियरीज डेवलप हुई हैं बच्चे, उसमें बहुत सारी बातें आपको कपोल कल्पित लगेंगी. इट इज व्हाट मोस्ट इमेजिनरी. फाइन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एजम्पशन और एक्सियोम, कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा सच हुआ होगा. ठीक है. तो gaseous hypothesis by Immanuel Kant talks about something which was created supernaturally. ओके. और ये ऑल्दो इन्होंने कहा कि भाई ये gaseous hypothesis जो मैं देने जा रहा हूं, वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज साइंटिफिक. Okay, but his first assumption is quite unscientific.
तो पहली बात थी, यहां से समझे, इमैनुअल कांट की जो हाइपोथेसिस थी, इट वाज अनसाइंटिफिक, ऑल्दो ही वाज थंपिंग हिज चेस्ट कि दिस इज व्हाट न्यूटोनियंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज फॉलोड while giving this hypothesis, but again you will find in latter phase of the hypothesis, when you go through the hypothesis, that it is also not following the Newtonian principle. Fine. तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इनका कहना था कि supernaturally created primordial hard matter was scattered in universe. Scattered था, and it was slowly rotating gaseous cloud. This hard matter comprised of very cold, solid and motionless particle. Solid and motionless particle. That means ये जो hard matter था वो motionless था initially. फिर क्या होता है बच्चे कि इस hard matter के particle आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं। ये कोलिजन उनके म्यूचुअल ग्रेविटेशन से होता है। ये बात हो सकती है कि बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन द हार्ड matter or any matter or any atom collide with each other, that can be possible, but न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो ये कहता है बच्चे कि कोई चीज अगर स्थिर है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वो स्थिर रहेगी। कोई चीज गतिमान है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सो इन दैट केस, from where this force is coming, so that they start colliding with each other. Okay, fine. अगर हम मान भी लेते हैं कि there was a gravity, so ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होना शुरू हुआ बच्चे? पार्टिकल begin to collide against each other under their mutual gravitational attraction. ठीक है। अच्छा, पहले ये प्राइमोर्डियल हार्ड मैटर was motionless. It was a motionless, है ना? अब ये मोशनलेस से इसमें मोशन कैसे आ गया जी? मोशन तो तभी आएगा ना जब कोई बाहर से फोर्स लगाए। तो अगेन ये न्यूटोनियन प्रिंसिपल की बात तो करते हैं, लेकिन पहला ही अजम्पशन न्यूटोनियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इट वाज मोशनलेस एंड नेबुला स्टार्ट रोटेटिंग स्लोली। ठीक है। सो हाउ दिस रोटेशन वाज देयर when it was a motionless particle, so how motion was started, उसके बारे में ये बताते हैं। anyway, particle begin to collide under its gravity, and collision से क्या हुआ बच्चे? हीट रिलीज हुई, हो सकती है, और हीट रिलीज होने से क्या होगा बच्चे? टेम्परेचर उस प्राइमोर्डियल मैटर का जो नेबुला है बढ़ेगा। Due to this mutual gravitational attraction and collision between the particle generated random motion in the primordial matter. As a result, particle will collide together and also generate friction, which generate heat, with the result of temperature of the primordial matter started rising. So because of collision, because of friction, heat generated, and due to that heat, temperature of this primordial matter start rising. Okay. अब क्या होगा बच्चे? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब जरा इनकी बात को मानते हुए चलते हैं। With increase in temperature, the random motion as well as the rate of collision among particle also increase. इनका कहना है कि जैसे ही हीट ज्यादा रिलीज हुई, टेम्परेचर और बढ़ा। टेम्परेचर और बढ़ने से बाकी जो पार्टिकल थे उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आई, और वो और तेजी से क्या करने लगे? मूव करने लगे, जिससे कोलिजन भी बढ़ गया। अच्छा, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, इट मे इंक्रीज द रैंडम मोशन, इट मे ऑल्सो इंक्रीज द कोलिजन। फाइन, ये बड़ा सही सा एक्सप्लेनेशन लग रहा है। This gave extra momentum driving force to the rate of rotatory motion. This rise in temperature also changed the state of primordial matter from solid to gaseous particle. तो इनका जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो सॉलिड था। अब टेम्परेचर बढ़ने से उसने अपना फेज भी चेंज कर दिया। नाउ इट इज फ्रॉम सॉलिड इट बिकम गैसियस। ठीक है बच्चे। तो पहले सॉलिड प्राइमोर्डियल मैटर सुपरनेचुरली क्रिएटेड था, मोशनलेस था। उसमें क्या हुआ? कोलिजन शुरू हुआ। कोलिजन शुरू होने से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हीट, और हीट के ज्यादा होने से और कोलिजन और हीटिंग हुई। अब वो सॉलिड मैटर गैसियस पार्टिकल में बदल जाता है। Thus the original cold and motionless cloud of matter became a due course, a vast hot nebula, and started rotating around its axis. अब वो एक्सिस पे घूमने लगा। This hot gaseous nebula start rotating
on its axis. यानी मोशनलेस में रोटेशन स्पीड आ गई. ये कुछ अनसाइंटिफिक सी बात है. With a continuous rise in temperature and rate of rotation motion, the nebula started expanding in size. टेम्परेचर बढ़ा तो नेबुला एक्सपेंड किया, और एक्सपेंडिंग नेबुला का आप देख पा रहे हो रेट ऑफ रोटेशन मोशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, जो कि अगेन अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर साइज बढ़ती है तो रोटेशन स्पीड जो है बढ़ेगी नहीं, कम होनी चाहिए. लेकिन इनका जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा फिजिक्स ना होकर के फिजिक्स के आसपास की बातें तो ये करते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं करते. अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, as the heat increased, the size of nebula increased, and as the size of nebula increased, the angular velocity or rotatory speed further increased. Due to continuous increase in the size of nebula, the rotatory speed became so fast that the centrifugal force, which is acting away from the center, आपको पता है ना बच्चे, कहीं खाली जगह मिले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं. So there is centrifugal force. So this is a rotating nebula, and it is rotating fast. So one force which is acting towards the center is actually called a centripetal force. Centripetal force. And just opposite to this force, there will be another force that generate, which is actually opposing the centripetal force, and this is called as centrifugal force. Centrifugal force. So two forces are acting when anything is executing circular motion. One is centripetal, and another one is centrifugal. And do remember, this centrifugal force is a reactionary force. अगर आपने न्यूटोनियन प्रिंसिपल पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सेंट्रीपीटल फोर्स को अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स जनरेट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं बच्चे. इफ एनीथिंग इज रोटेटिंग, सो दीज टू फोर्सेस आर गोइंग टू बी सेम. इट्स नॉट लाइक कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा. लेकिन अब इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं. ये बेसिक साइंस में आपको पढ़ाया जाता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इनका कहना है ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन साइज ऑफ द नेबुला, द रोटेटरी स्पीड बिकम्स सो फास्ट that the centrifugal force away from the center exceed the attractional or centripetal force directed towards the center. अब जब centrifugal force बढ़ेगा तो इनका कहना है बच्चे, the nebula started spinning so rapidly that an irregular ring was separated from the middle part of the nebula. यहां से irregular shape की जो ring होती है वो सेपरेट हो गई और दूर फेंक दी गई. दिस इज इरेगुलर रिंग. और इस तरह के 9 इरेगुलर रिंग्स क्या कर दिए गए? समय के साथ थ्रो कर दिए गए. और यही 9 इरेगुलर रिंग, दे आर कंटेनिंग द गैसियस मास गेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लैनेट. ठीक है. तो ये कहते हैं कि द नेबुला स्टार्टेड स्पिनिंग सो रैपिडली दैट एन इरेगुलर रिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ नेबुला and was ultimately thrown off due to centrifugal force into the space. By the repetition of the same process, a system of concentric ring, and how many in number? 9, was separated from nebula. The residual central mass of the nebula remained as the sun. जो बचा था वो sun के रूप में रह गया. And all the matter of each ring were aggregated at a point to form a core or knot, which ultimately grew as a planet in due course of time. ये जितने रिंग थे वो धीरे धीरे एग्रीगेट करके क्या बना दिए? प्लैनेट बना दिए. अब इनसे पूछा जाता कि सर ये बताएं ऐसा क्यों हुआ केवल 9 ही रिंग्स निकले? व्हाई नॉट मोर देन दैट, व्हाई नॉट लेस देन दैट? इसका कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था. दूसरी बात इनसे ये पूछा जाता कि सर हमारे सोलर सिस्टम में तो देयर आर आइस बाइनरीज, there are asteroids, there are other natural satellites. Saturn और जुपिटर तो 100 सैटेलाइट के ऊपर इन्होंने लेके रखे हुए मून. उनका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताते. ठीक है. So this was the nebular hypothesis.
अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द इवैल्यूएशन, तो ये कहाँ कहाँ गलत थे इस बात को समझते हैं. According to Kant, there was a primordial matter in the universe, but he did not explain the source of origin of the primordial matter. ये आया कहाँ से? इन्होंने एक शब्द दे दिया कि this was a supernatural creation. ठीक है, supernatural creation. आप पूछ ही नहीं सकते, इन्होंने कहा भगवान ने बनाया भाई. लेकिन साइंस चाहता है कि आप इस प्रोसेस को समझाएं. जब हम बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे बच्चे, तो हम यही देखेंगे कि इन बिग बैंग थियरी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैटर इज वेल एक्सप्लेन्ड mathematically as well as scientifically. That's why this supernatural creation, which is associated with almost all the theories, initial theories, in dealing with the uh, origin of universe as well as origin of planet, तो उन सब ने supernatural creation की बात कही है. It is only the Big Bang that talks about the process, and that too scientifically proved the process how the matter was created. तो वहां पे पढ़ेंगे, बट यहाँ देखते चले कि कांट की कमियां क्या क्या है. सो अकॉर्डिंग टू कांट देयर वाज अ प्राइमोर्डियल मैटर, और उसका बनना कहाँ से आया इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते. Kant did not explain the source of energy to cause the random motion of the particle of the primordial matter. भाई प्राइमोर्डियल मैटर को तो वो स्टेशनरी मान रहे थे. तो प्राइमोर्डियल मैटर में इनिशियल जो मूवमेंट हुआ रैंडम मोशन वाला, उसके लिए कौन सा फोर्स उत्तरदायी है? एंड सबसे बड़ी बात कि ही वाज टॉकिंग अबाउट न्यूटोनियंस लॉ ना. एंड न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया. If a system is stationary, it will remain stationary. If a system is in movement, it will remain in movement until there will be external force is applied. So the system, that is what a body will not change its initial position. इसी को कहते हैं law of inertia, है ना. तो आखिर वो फोर्स कौन था जिसने इस प्राइमोर्डियल मैटर में रैंडम मोशन को क्रिएट किया? इसको भी इमैनुअल कांट नहीं बता पाते. Collision among the particle of the primordial matter can never generate rotatory motion. सर कोलिजन से हीट तो राइज हो जाएगी और हीटिंग भी हो जाएगी, लेकिन वो रोटेटरी मोशन क्रिएट करे, वो रोटेट करने लगे, ये नहीं हो सकता. It is an erroneous statement of mechanism. Fine. Can't assume that rotatory speed of nebula increased with increase of size was against the law of conservation of angular momentum. भाई साइज बढ़ेगी तो रोटेशन की स्पीड धीमी होगी, और इनका उल्टा चल रहा था. So these are the things which is what very much scientific, and that has to be satiated, which is not at all what explained by Immanuel Kant's assumptions. However, the importance of Kant hypothesis lies in the fact that it was the first scientific attempt for a scientific attempt, but with erroneous, what you can say, explanation. And it was the first scientific attempt for explaining the origin of Earth. Kant hypothesis play a great role in the postulation of nebular hypothesis by Laplace. इसके बाद गैसियस हाइपोथेसिस के बाद अगले जो थियरी आएगी वो लाप्लास, जो मैथमेटिशियन है बच्चे फ्रांस के, उनकी नेबुलर हाइपोथेसिस आएगी, जो इनके डीमेरिट्स को ध्यान में रख के इवॉल्व होगी. तो इनकी डीमेरिट्स समझ में आ गई. व्हाट इज द एग्जैक्ट थियरी? यू अंडरस्टूड और नॉट? नाउ इट्स योर टर्न. आई एम जस्ट आस्किंग. समझ में आया इमैनुअल कांट क्या कहना चाहते हैं? बताइए बच्चे. इमैनुअल कांट का कहना था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ एज वेल एज प्लैनेट एज वेल एज सोलर सिस्टम एज वेल एज सन हैव टेकन प्लेस फ्रॉम सुपरनेचुरली क्रिएटेड गैसियस नेबुला. और जब ये पहली बार क्रिएट हुई थी तो इट वाज अ सॉलिड मोशनलेस, और इसमें टक्कर शुरू हुई, टेम्परेचर बढ़ा तो फिर इसमें मोशन शुरू हुआ, और भी टक्कर हुआ तो हीट बढ़ा, और ये फिर रोटेट करने लगा. और इतनी जोर की रोटेशन हुई कि उसमें से 9 concentric rings were thrown out into the space, and it become what? 9 planets. Just wait for 1 second. I'm coming.
ओके, सो ये थियरी समझ में आ गई आपको, एक बार आप पढ़िएगा। और इसकी डीमेरिट्स क्या है बच्चे? डीमेरिट्स ये हैं कि ये अनसाइंटिफिक है, ऑल्दो चेस्ट थंपिंग क्या हो रही है कि इट इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियंस प्रिंसिपल ना, बट इट्स नॉट फॉलोइंग द न्यूटोनियन प्रिंसिपल। इज इट फाइन? कोई Yes, sir. क्वेश्चन हो तो पूछ लें बच्चे। शैल वी प्रोसीड? ओके, फाइन। अगली थियरी है बच्चे लाप्लास की। मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक बार देख लूं। अच्छा ठीक है। लाप्लास एक मैथमेटिशियन है बच्चे। मैथमेटिशियन तो उन्होंने पहले, इनके पहले एक थियरी आई है तो उसकी कमियों को देखेंगे। अच्छा, इज इट ओके टू हैव बाइलिंगुअल और शैल आई गो फॉर इंग्लिश ओनली? व्हाट इज योर टेक? सर क्या कह? बाइलिंगुअल ही ठीक है। हाँ, बाइलिंगुअल ही ठीक है। बाइलिंगुअल ठीक है, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नहीं सर। चलेगा ना सर, दोनों का यूज यस सर। करके, क्योंकि ज्यादातर भुवनेश्वर, कोलकाता, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से भी हैं। तो जहां अगर दिक्कत हो हिंदी समझने में, वैसे आई विल यूज बोथ सो दैट यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, इट शुड बी बेटर। तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए बाइलिंगुअल ही रहेगा, बट नोट्स आपको जो प्रोवाइड होंगे दैट विल बी इन इंग्लिश। ठीक है। सो जहां आपको लगे कि समझ नहीं आया सर, तो लेट मी नो, आई विल गो फॉर इंग्लिश ऑल्सो। ओके, so next one is nebular hypothesis. Nebular hypothesis by Laplace. So Laplace, he was a mathematician. He propounded his theory in 1796. And basically Laplace hypothesis is nothing but extension of Immanuel Kant's hypothesis. Laplace nebular hypothesis was some way similar to gaseous hypothesis of Kant and appears like the modified version of Kant. अब मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? जहां पे इनकी घोर बेइज्जती हुई है उसको मॉडिफाई कर लेंगे, यही करेंगे ये। अब इनके एजम्पशन को सुनिएगा। इन्होंने एज्यूम क्या किया है कि देयर वाज अ ह्यूज एंड हॉट गैसियस नेबुला इन द स्पेस। इन्होंने कहा एक बहुत बड़ा और गर्म गैसियस नेबुला स्पेस में था। इन्होंने जो इमैनुअल कांट की मोशनलेस प्राइमोर्डियल गैसियस नेबुला, उसमें मोशन आया, कैसे आया उसको सॉल्व कर दिया और बता दिया कि भाई इनका एजम्पशन ही है कि देयर वाज अ हॉट नेबुला इन द स्पेस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ह्यूज एंड हॉट नेबुला वाज रोटेटिंग। देख रहे हो आप इनके एजम्पशंस को? देखो इनके एजम्पशंस यहाँ पे आपको करेक्ट करते हुए चीजों को दिखेंगे, दिख रहा है ना? So he assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space. तो उससे बच गए कि there was a collision, it was earlier solid, then become gaseous, and then it start rotating and all that. इन्होंने कहा भाई बना ही ऐसा था और रोटेट कर रहा था अपनी एक्सेस पे। अब बेइज्जती तो वो होगी नहीं जो कांट ने झेली थी। The nebula was continuously cooling due to loss of heat from its outer surface. ये बात भी सही है भाई कि अगर हॉट एंड रोटेटिंग गैसियस नेबुला है तो ये जब रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो आउटर लेयर से हीट रिलीज होगी। सो नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, thus it was continuously reduced in size। देखो इन्होंने उल्टा जो है हिसाब लगाया, वो इंक्रीज कर रहे थे साइज, he reduced the size due to contraction on cooling। कूलिंग होगी बच्चे, सो ऑब्वियसली थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कूलिंग फॉलोड बाय थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, है ना? So the process of radiation, thus it was continuously getting reduced in size due to contraction and cooling। अब लाप्लास क्या कहते हैं? Since nebula was continuously reduced in size,
due to gradual loss of heat from the outer surface of the nebula through radiation, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? उसकी रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी. Thus reduction in size and volume of nebula increased the circular velocity or rotation velocity of the nebula. यानी पहले nebula ऐसे बड़ा सा था. It was a big nebula, hot rotating nebula, and it get cooled. Cooling हुई तो it get contracted. Contraction हुआ बच्चे तो क्या होगा? इसका rotation. There will be reduction in size. Reduction in size. So increase in the rotation. So there was an increase in rotation. Rotation बढ़ गया जी. अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा आगे. Due to increase in velocity, nebula started spinning at very fast speed, and consequently the centrifugal force becomes so great that it exceeded the centripetal force. Consequently, the outer surface was condensed due to excessive cooling, and so it could not rotate with the still cooling and contracting central nucleus of the nebula. इनका कहना था जो outer सरफेस था वो कूल हो चुका था और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था. आउटर सरफेस वॉज कंडेंस्ड, कंडेंसेशन भी हो चुका था टू एक्सेसिव कूलिंग, एंड सो इट कुड नॉट रोटेट विद द स्टिल कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द नेबुला, एंड दस द आउटर रिंग वॉज सेपरेटेड. बाकी क्या थे बच्चे? रोटेट कर रहे थे, ये नहीं रोटेट कर पा रहा था क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो चुका था. सो आउटर रिंग वॉज सेपरेटेड, fine, remaining part of the nebula, and this separated ring started moving around the nebula. Laplace further maintained that the original ring was divided into 9 rings. जो ये ओरिजिनल रिंग एक जो सेपरेट हुई थी, इसी से 9 टुकड़े हुए, 9 रिंग्स बने, and each ring moved away from the outer ring. Thus 9 planets were formed from the 9 rings, and the remaining central nucleus of the nebula become the sun. इन्होंने थोड़े से मॉडिफिकेशन कहाँ किए हैं? वो जो सारे डीमेरिट्स थे इमैनुअल कांट के, उसको सुधार करके इन्होंने एक अपनी थियरी दे दी है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन टू से, एंड यू आल्सो सी हाउ ही एस्केप ऑल दोस शॉर्टकमिंग ऑफ इमैनुअल कांट. इज इट ओके टू एवरीवन? बताएं बच्चे. सर लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया. कौन सा बेटे? एकदम लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट कैसे वो रिंग निकली है ये आपको हाँ. इनका कहना था, आप समझिएगा. इन्होंने कहा कि ये जो नेबुला थी दैट वाज गेटिंग कूल्ड, कूलिंग हो रही थी. तो कूल कौन सा सरफेस होगा? सबसे बाहर वाला होगा कि अंदर वाला होगा? दिस इज आउटर रिंग. सो आउटर जो सरफेस था इट गेट सॉलिडिफाइड बिकॉज ऑफ कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन. कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ बच्चे? इट गेट सॉलिडिफाइड. लेकिन अंदर क्या था? स्टिल गैसियस फेज में ये रोटेट कर रहा था. तो इसका जो डिटैचमेंट हुआ, ये जो आउटर रिंग थी, ये क्या हुई बच्चे? बहुत तेजी से जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उससे ये निकल के दूर चली जाती है. सो दिस रिंग वाज डिटैच्ड क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो चुकी थी. इनका कहना है due to increase in velocity, nebula started spinning at very fast speed, and consequently the centrifugal force becomes so great that it exceeds the centripetal force. Consequently, the outer surface was condensed due to excessive cooling. Outer surface was condensed. Outer surface जिसको मैंने यहाँ बताया आपको. And so it could not rotate with the still cooling and contracting central nucleus of the nebula. जो अंदर वाला न्यूक्लियस है, जो अंदर का नेबुला है, वो अभी भी कूलिंग हो रही थी उसमें, और अब इट कुड नॉट रोटेट विद द स्टिल कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेंट्रल न्यूक्लियस. इनके साथ वो
रोटेट नहीं कर पाया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, एंड दस द आउटर रिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला। इसलिए ये सबसे बाहर वाला रिंग सेपरेट हो गया okay, separated from the remaining part of the nebula, and this separated ring moving around the nebula, और ये इसके चारों तरफ घूम भी रहा था, ठीक है, मूविंग अराउंड द नेबुला बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, लाप्लास further maintained that original ring was divided into 9 rings। ये जो एक रिंग निकली थी, इसी से 9 डिफरेंट रिंग्स बने। each ring moved away from the outer ring, और सारे दूर दूर चलते चले गए, and they became the 9 planet and 9 rings, and remaining central nucleus become the sun। जो बचा रहा वो आज भी सन के रूप में है। बचा कौन सा था? ये गैसियस नेबुला बची रही। बाहर वाली क्या हो गई थी? ठंडी हो चुकी थी, सॉलिडिफाई हो चुकी थी, जो रोटेट नहीं कर पा रही थी अंदर वाले नेबुला के साथ में, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये रिलीज कर दी गई बच्चे टुवर्ड्स द स्पेस, एंड फर्दर 9 rings were separated out of this outer ring, and that become our planet। Is it understandable? Yes, sir. समझ गए बच्चे? अब आइए देखते हैं इवैल्यूएशन। He did not describe the source of origin of nebula। Again, इन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि ये नेबुला, ये जो सब्सटेंस आए, मटेरियल आए, चाहे वो हाइड्रोजन और हीलियम थे या फिर जो कुछ भी थे, जो भी एलिमेंट थे इन फॉर्म ऑफ मैटर, जो हॉट एंड गैसियस नेबुला बना था, वो आया कहां से, इसके बारे में ये भी नहीं बताते। Still this question is unanswered। He did not explain that why did only 9 rings come out from irregular ring detached from the nebula। चलो, ये एक तरह से आर्गुमेंट हो सकता है कि why only 9 rings were detached, क्योंकि 9 प्लैनेट हैं तो 9 रिंग्स हमारे एजम्पशंस में सही होते हैं। ये एक तरह से आर्गुमेंट होगा, एग्जेगरेशन ऑफ आर्गुमेंट, कि क्यों 9 ही रिंग थे, क्यों 8 क्यों नहीं हुए। So this is why, because 9 rings were there, that's why 9 planets were there, that's why they are proposing 9 rings। But if the sun is the remaining nucleus of nebula as claimed by Laplace, it should have a small bulge around its middle part, है ना? अगर सन है और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना स्ट्रांग रहा है तो क्या होगा बच्चे? There should be a bulge at the middle part। लेकिन ये बल्ज सन के अंदर नहीं देखा जाता। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ इज रोटेटिंग ना, सो अर्थ रोटेट करती है, दैट्स व्हाई द इक्वेटोरियल डायमीटर इज लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर। आपने सुना होगा कि पोल पे थोड़ी सी अर्थ फ्लैट है। इफ यू सी द पोलर डायमीटर, इट हैपन टू 12,714 किलोमीटर, while equatorial diameter is 12,756 kilometer। So there is a difference of 42 kilometer, and this 42 kilometer is what we call equatorial bulge। Equatorial bulge क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि continuously the earth is rotating, and due to centrifugal force थोड़ा सा इक्वेटर के पास ये बल्ज ज्यादा है और पोल पे अर्थ फ्लैट है। अगर सन भी इस तरह से रोटेट करता होता या किया होता तो सन का भी शेप जैसे अर्थ का है वैसा होना चाहिए, बट इफ यू सी द सन, इट इज perfect sphere। So there is no such bulge in the middle part of the sun is observed till date। और अगर सन इस तरह से रोटेट कर रहा होता तो फिर वो डांस करना बंद क्यों किया? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। According to the nebular hypothesis, all satellites should revolve in the direction of father planet, but few satellites of Saturn and Jupiter, they are revolving opposite to the direction of their father planet, isn't it? And not only this, Venus as well as Uranus, these are the 2 planets which is actually rotating in opposite direction to other planet। Means except Venus and Uranus, all the planets are rotating in anti-clockwise direction, including Earth, but Venus and Uranus, these are the 2 planets rotating in clockwise direction। So if this is what from the same gaseous nebula ejected from the sun, so why there is a different rotation? इस क्वेश्चन का भी आंसर इस थियरी के पास नहीं है।
The nebular hypothesis is unable to explain the peculiar distribution of present day angular momentum in our solar system. Again, it is not supporting the angular momentum because जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये थियरी भी अनसाइंटिफिक मानी जाती है. लेकिन व्हाट इज आउटकम? The merit of theory lie in the fact that it is the most acceptable explanation in explaining the layered structure of Earth interior. क्योंकि आगे जब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे बच्चे, तो अर्थ का इंटीरियर भी कैसे बना है? इनिशियली इट वाज अ gaseous fireball, and from gaseous fireball it get converted into crust, mantle and core. So how this stratification happened? Because of cooling and contraction, successive cooling and contraction, this earth was formed. So इनके hypothesis की merit ये है कि इन्होंने cooling, thermal expansion और thermal contraction को बहुत अच्छे से use किया और समझा ले गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इनकी theory चुप रह जाती है. And the most important thing is कि how this nebula was formed, what was the process behind it, it was not explained at all. Is it okay to everyone? The demerits of Laplace is okay. Shall we यस proceed? सर. Yes, sir. Okay. इसके बाद जो अगली थियरी आती है बच्चे, वो चैम्बरलिन आ रहे हैं 1905 में अपनी थियरी लेकर के, और इन्होंने अब कॉन्सेप्ट में एक नई चीज जोड़ दी है. इन्होंने कहा है कि भाई प्लैनेट ऐसे ही नहीं बने, प्लैनेट बने हैं दो स्टार के इंटरेक्शन के कारण. And that's why his theory is what called as dualistic concept of origin of Earth. Dualistic means two. So there is involvement of two stars. ठीक है. चैम्बरलिन. बाकी लोग की क्या बात है? सभी किसकी बात कर रहे हैं? गैसियस नेबुला. एक सन था, वही रोटेट कर रहा था, उसी से निकल रहा है. ठीक है. So gaseous hypothesis as well as nebular hypothesis talks about monolistic concept, isn't it? Monolistic concept. That means one celestial body is involved. Monolistic concept. इसका मतलब है कि देयर वाज अ गैसियस नेबुला, उसको आप सूरज ही मान लीजिए, सन, और इसी के इजेक्शन से, इसी के रोटेशन के कारण देयर वाज इजेक्शन ऑफ 9 concentric ring, or there was ejection of one ring that get converted into 9 different ring, etc. It is a monolistic concept, but here we are going to have involvement of another star. ये है मिस्टर चैम्बरलिन. Planetesimal hypothesis of Chamberlain belongs to dualistic concept of origin of Earth. According to Chamberlain, दो तारे हैं बच्चे. एक है आपका प्रोटोसन, जहां से सब कुछ निकलने वाला है. दूसरा एक है स्टार, जिसको आप कंपेनियन स्टार बोल सकते हो, इंट्रूडिंग स्टार, या वांडरिंग स्टार भी इसे बोला जाता है. So what I said? So there was a protosun, there was a companion star, or you can say intruding star, or there is one more word used, wandering star. Wandering star. इनका कहना था कि behavior and properties of protosun were not like other star. It was formed very small particle which were cold and solid. पहली ही बात ये गलत बता रहे. ठीक है, लेकिन चलो अब इनकी थियरी पढ़नी है तो समझते हैं कि इनका क्या कहना है. इनका कहना है कि प्रोटोसन जैसे बाकी तारे होते हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए, वैसा नहीं था. प्रोटोसन थोड़ा स्पेशल था. उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो स्मॉल पार्टिकल के बने हुए थे, जो कोल्ड भी थे और सॉलिड भी थे. सॉलिड एंड कोल्ड. अब क्या कहते हैं? When the intruding star came very close to the protosun, infinite number of small particles were detached from the outer surface of protosun due to massive gravitational pull exerted by the giant intruding star. This matter, which is a dust gas as well as rock fragment, eventually accreted, forming planet and other celestial body that revolve around the protosun. इनका कहना था कि भाई देखो, ऐसे प्रोटोसन हमारा था बेचारा, अलग सा तारा. किसका बना हुआ बच्चे? स्मॉल, सॉलिड, एज वेल एज
कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। इसी को आगे प्लैनेटेसिमल्स को बोलते हैं। ये था प्रोटोसन, और एक बड़ा सा इंट्रूडिंग स्टार आता है और आकर के पास से चला जाता है। इंट्रूडिंग स्टार और वांडरिंग स्टार, ये रहा आपका वांडरिंग स्टार, और इसको इंट्रूडिंग स्टार कह सकते हैं। इंट्रूडिंग स्टार, it was a big star, so obviously it has higher gravitational pull, higher gravity. And due to this gravitational pull, what happened? There was a matter that came out from the sun. This was the matter that came out from the protosun. अब वो बाहर आया, फिर क्या हुआ बच्चे? When the intruding star came very close to the protosun, infinite number of small particles were detached from the outer surface of protosun due to massive gravitational pull exerted by giant intruding star. This matter, which is dust, gases, rock fragment, eventually accrete. जब ये बाहर निकल गए बच्चे, so they eventually accrete, एक साथ आते हैं, forming planet, another celestial body that revolve around the protosun, जो प्रोटोसन के चारों तरफ क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे. So these are the, अब यहाँ इंट्रूडिंग स्टार के कारण ये मैसिव स्टार छोटा सा दिखाया गया है, मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया, so that you understand, because of the gravity, this was the excision of the, what you can say, matter from the protosun. This was a protosun, and it exceeded out, and this star went away. ये भाग जाता है. अब ये प्रोटोसन की ग्रेविटी में ये जो निकला हुआ मैटर है, पहले कंडेंस होता है, एक्रीट होता है, they get aggregated and they form the planet as well as other celestial body. Planetesimal hypothesis not only explain the origin of Earth, but also throw light on the structure of the Earth, the origin of its atmosphere and continent and ocean basin. ये काफी चीजों को क्या कर रहा है बच्चे, जो डिमेरिट्स हैं लाप्लास के और इमैनुअल कांट के, उसको दूर कर ले रहा है. ठीक है. And not only this, they also talked about how the Earth gets solidified, how Venus gets solidified, Mercury gets solidified, etc. So origin of Earth को भी ये समझा ले जा रहे हैं. और ये जो रॉक फ्रेगमेंट या गैसेस थी या फिर सॉलिड मैटर था जो प्रोटोसन से निकला है, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा? प्लैनेटेसिमल्स. All these planetesimals aggregated to form this planet. Is it fine? So this is what the planetesimals hypothesis by Chamberlain. Is it okay to everyone? Again, जब इस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो स्टार बने हुए बता दिए इन्होंने, लेकिन वो स्टार चाहे वो प्रोटोसन हो या फिर इट इज द इंट्रूडिंग स्टार, ये भी तो किसी से बने होंगे. यहाँ भी तो कोई मैटर है जिसके कारण ये बने इंट्रूडिंग स्टार. इनके फॉर्मेशन की बात नहीं बताते. तो कुल मिलाकर के द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टार, हाउ द स्टार वाज फॉर्म्ड, उसके पहले क्या बताना होगा? हाउ द मैटर केम, है ना? इस प्रोसेस को ये भी नहीं बताते. Although his theory is very much acceptable theory, and not one, there are certain demerits also, उसकी बात करते हैं, लेकिन ये काफी एक्सेप्टेबल थियरी थी, लेकिन ये भी पूरी तरह से प्रोसेस को नहीं बताते. अब इसकी डीमेरिट क्या थी? इसकी डीमेरिट ये थी बच्चे कि ये जो मैटर निकला था, उन्होंने बताया कि दिस मैटर वाज एक्सीज्ड आउट एंड इट वाज अ होमोजेनस elongated planetesimals. So homogeneous elongated planetesimals अगर निकले तो why the size of inner planet is smaller and why the size of outer planet like Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune is bigger. So if this planetesimals is of this shape, which is what? A cigarette shape. So why these outer planet are bigger in size? तो इस बात को चैम्बरलिन की जो हाइपोथेसिस है वो प्रूफ नहीं कर पाती, और अगेन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी ये सपोर्ट नहीं कर पाते, और ये भी नहीं बता पाते कि विनस और यूरेनस का रोटेशन उल्टा क्यों है. ठीक है.
So these are few demerit associated with Chamberlain's planetesimals hypothesis. लेकिन इन्होंने एक रास्ता जरूर दिखाया है जिसके आधार पे जो अगली हाइपोथेसिस ऑफ जेफरी एंड जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, which is what one of the most acceptable hypothesis in terms of अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बहुत सारी डीमेरिट्स को दूर किया जाएगा. इज इट अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन? बताएं भाई. यस Yes, सर। sir. हम्म. Yes, sir. Understood. ओके फाइन. चैम्बरलिन हाइपोथेसिस, प्लेनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस. आप जो है इस नोट्स को ध्यान देके सविंद्र सिंह की उस किताब में जो भी थियरीज दी गई हैं उसे पढ़िएगा. दिस इज अ काइंड ऑफ जीस्ट ऑफ दोज 6, 7, 8 पेजेस ना. छोटे छोटे जीस्ट मैंने बनाए हैं और इसको बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा. अब अगली थियरी है बच्चे, जीन्स एंड जेफरी की टाइडल थियरी, अ टाइडल हाइपोथेसिस, जिसमें चैम्बरलिन की थियरी को क्या करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी इन्होंने दिखाई है. अगेन दिस इज ऑल्सो अ डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस. इसमें भी ये 2 स्टार इन्वॉल्व है, लेकिन ये अलग कैसे है इसको जरा समझिएगा. दिस थियरी इज समवॉट सिमिलर टू चैम्बरलिन्स थियरी दैट एन इंट्रूडिंग स्टार ejects matter from the protosun. ठीक है. Chamberlain in his theory had assumed the protosun to be initially as a cold body, whereas the tidal theory assumed that the protosun to be hot and incandescent. इनका मानना है कि सूरज जो है कोल्ड बॉडी नहीं था जी, इट वॉज हॉट गैसियस मास, और जल रहा था, ये रोशनी भी निकल रही थी, जो कि तारे आमतौर पे होते हैं. सो जीन्स ने अपनी पहली ये थियरी दी, जिसको फिर जेफरी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. सो यू विल फाइंड जीन्स एंड जेफरी थियरी व्हिच हैज अ काइंड ऑफ अ जर्नी ऑफ 40-50 इयर्स. तो एक थियरी आई है, उसका फिर मॉडिफिकेशन आया है, उसको जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस कहा जाता है. तो चैम्बरलिन ने कहा कि प्रोटोसन वाज अ कूल्ड बॉडी and it was made up of solid material. लेकिन इनका कहना है कि ना भाई, प्रोटोसन तो प्रोटोसन ही था, सूरज जैसा ही था, गैस का बना हुआ था, गोला था, लगातार जल रहा था और उससे रोशनी निकल रही थी जैसे तारे होते हैं. इन्होंने कहा कि प्रोटोसन बना था. अच्छा, जीन्स एंड जेफरी भी ये नहीं बताते कि ये प्रोटोसन या स्टार कैसे बना था. ठीक है. सो they were also not able to explain the process of formation of a star, process of formation of matter, जो कि बिग बैंग थियरी, जो आप जीएस में मैंने जो आपको पढ़ाया भी है, उसमें ये बात बताई जाती है. ठीक है. तो आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाउ बिग बैंग थियरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंटेम्पोररी थियरी. इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर मेंस एग्जामिनेशन ना. तो बिग बैंग थियरी भी पढ़नी है, तो ध्यान देते हुए चलें. Why Big Bang theory is one of the most acceptable theory above all these theory. Na? So Jeans and Jeffrey tidal hypothesis. This theory is somewhat similar to Chamberlain's theory that an intruding star, that means it's also a dualistic theory that involve two celestial body or two star. Fine. Intruding star ejects matter from the protosun. The gravity of intruding star is responsible for ejection of matter from the protosun. Chamberlain, in his theory, had assumed the protosun to be initially as a cold body, whereas tidal theory assumed that the protosun to be the hot and incandescent. पहली समस्या दूर की ना. उसके बाद क्या कहते हैं? According to the tidal theory, the matter ejected are not randomly thrown dust and gases and planetesimals. They are basically ejected in a very peculiar filament, and that too in a cigar shaped manner. तो कैसे इजेक्ट हुए थे बच्चे? सिगार शेप मैनर में इजेक्ट हुए थे. This was the shape of the matter which was ejected out. The ejected matter was in a shape of a cigar and was called filament. इसको filament कहा.
ये है आपका मैटर दैट वाज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द प्रोटोसन. This was a sun and this is a star that move away, a huge star. This is intruding star. और सूरज से ये फिलामेंट निकला है ना बच्चे. अब ये फिलामेंट निकला तो क्या हुआ, इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि ये जो इंट्रूडिंग स्टार है ये फिर इस पिक्चर से भाग जाता है. ये आता कहाँ से ये तो कोई नहीं बताता ना. इनसे पूछा गया कि चचा ये बताओ कहाँ से इंट्रूडिंग स्टार आया और अब कहाँ चला गया, दोबारा क्यों नहीं आया, हमें एक ही सोलर सिस्टम क्यों बनाने को दिया, एक दो और बना देता तो मजा ही आता, एक और बगल में पृथ्वी और रहती है कि नहीं. सो इन सब के आंसर्स इस थियरी में नहीं मिलेंगे. सो दीज आर द फनी थिंग यू विल फाइंड दैट फ्रॉम वेयर दिस इंट्रूडिंग स्टार केम, और कहाँ भाग गया, उसका आता पता क्यों नहीं है, फिर दोबारा क्यों नहीं आया, इतने साल हो गए, आना चाहिए था, एक और हमारे पास सोलर सिस्टम होता, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो इनकी भी बेइज्जती होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी जो थियरी है इट इज बियॉन्ड डिबेट. देयर इज डिबेट बट आउट ऑफ दोज डिबेट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी. इन्होंने कहा इजेक्टेड मैटर वाज इन शेप ऑफ अ सिगार and it was called as filament from which the planet and other celestial bodies accrete. मतलब फिलामेंट फिर क्या हुए, धीरे धीरे ये सन के चारों तरफ घूमने लगे और अपनी ही ग्रेविटी में एक्रीशन होना शुरू हुआ. So there was formation of this is Mercury, then Venus, there was Earth, Mars, Jupiter, that giant is what here, Saturn again another giant, and this is how the planets were. So the cigar shape filament is going to satisfy why the inner planet are smaller and outer planets are larger. Is it okay? So this was the demerit, which was what persist with Chamberlain's planetesimal hypothesis, which find its solution in the tidal hypothesis. This theory is the best interpretation in explaining the sizes of the planet as they have arranged themselves away from the sun. ठीक है बच्चे. So is it okay, tidal hypothesis is okay for everyone? इन्होंने कहा एक इंट्रूडिंग स्टार आया, सिगरेट शेप मास निकाला, प्लैनेटेसिमल थे, आफ्टर सम टाइम दे गेट एक्रीटेड and they start revolving around the sun. They form they constitute our solar system. जीन्स एंड जेफरी ने कहा नहीं भाई, सन जो था वो सन जैसा ही था, वो ठंडा नहीं था, एंड इंट्रूडिंग स्टार आकर के सिगार शेप में सन का मैटर बाहर किया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द सोलर सिस्टम. कैन यू अंडरस्टैंड दिस इन नटशेल? बताएं बच्चे. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चला जाए. Shall we proceed? Yes, sir. यस सर. Fine. ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं धीरे धीरे. अगली हाइपोथेसिस आने वाली है आपके सामने, वो है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसल. रसल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में कहती है. इनका कहना है कि देयर इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम. बाइनरी स्टार क्या होते हैं, दो स्टार होते हैं. दो स्टार में एक हो सकता है बड़ा हो, एक हो सकता है छोटा, या हो सकता है दोनों बराबर हो. टू स्टार कपल्ड टुगेदर एंड रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर ऑफ मास. तो ये दोनों क्या करते हैं, फिक्स सेंटर ऑफ मास. अगर एक बड़ा स्टार है तो ये छोटा वाला इसका चक्कर लगा रहा होगा. लेकिन अगर ऐसे हैं कि दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में है तो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं. तो बाइनरी स्टार में कई कंडीशंस हो सकती हैं. सो देयर इज अ कंडीशन इन विच द स्मॉलर स्टार इज रिवॉल्विंग अराउंड द बिगर स्टार, और मे बी बोथ द स्टार आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इनको हम कहते हैं बाइनरी स्टार. सो देयर इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम, two star coupled together and rotating around a fixed center of mass. Is it okay? Intruding star comes closer to the binary star. एक और इंट्रूडिंग स्टार है जो आता है इन दोनों स्टार बाइनरी स्टार के अलावा. द इंट्रूडिंग स्टार कम्स क्लोजर टू द बाइनरी स्टार एंड इजेक्ट मैटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टार. और इस बाइनरी स्टार में से एक स्टार में से मैटर को निकाल देता है.
It doesn't explain what happened to the intruding star and the remnant of the star from which matter got ejected. तो ये जो थियरी है वो बाइनरी स्टार से मैटर को निकाल देती है, ये तो बताता है, और ये बाद में इस दूसरे जो बड़ा स्टार बचा है उसके चारों तरफ घूमने लगता है और सोलर सिस्टम बनाता है, लेकिन उस स्टार का इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ इसके बारे में नहीं बताता। द इजेक्टेड मैटर सर्कुलेट इनटू प्लैनेट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटोसन। प्रोटोसन कौन हो गया जी? जो स्टार बचा। दिस थियरी इज कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉस्मोपॉलिटन ऑफ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द सन, व्हाई द कंपोजिशन, सॉरी, व्हाई द composition of planet is different from the sun. जो कंपोजिशन है प्लेनेट का वो सूरज से अलग क्यों है, ये थियरी जरूर बताती है। क्यों? क्योंकि जब ये पूछा गया, यहाँ पे जब आप देखोगे टाइडल हाइपोथेसिस में, तो इनसे पूछा जाएगा ना कि सर प्लेनेट बने हैं, इनर प्लेनेट का केमिकल कंपोजिशन दूसरा है, हमारा सन आज भी किसका बना हुआ है बच्चे? आवर सन इज मेड अप ऑफ 71% hydrogen, 26% almost helium, and rest heavy element. ये सन की कंपोजिशन है, लेकिन हमारे प्लेनेट की कंपोजिशन क्या है बच्चे? अगर अर्थ की बात करें, सो देयर इज सिलिकॉन, देयर इज आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर सन से ही ये सारे प्लेनेट बने होते तो इनका भी केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए था। जब ये सवाल पूछा गया चैम्बरलिन से, तो चैम्बरलिन के लिए भी ये सवाल था, और तुम्हारे ये जेफरी एंड जीन्स की भी डेमेरिट थी कि कंपोजिशन ऑफ सन एंड द प्लैनेट इज व्हाट नॉट सेम, इफ इट इज एक्सीज फ्रॉम द सन सो देयर शुड बी सेम कंपोजिशन। तो रसेल ने कहा कि रोको, हम तुम्हें थियरी देते हैं, तुम ये सवाल ही नहीं उठाओगे। रसेल ने कहा बाइनरी स्टार थे, इंट्रूडिंग स्टार ने आके एक स्टार के मास को एक्सीज कर दिया और दूसरा स्टार सन बन गया, और ये क्या बन गए? प्लैनेट बन गए। तो अब आप दूसरा स्टार तो है नहीं कि आप केमिकल कंपोजिशन की बात करें, है कि नहीं? सो दिस थियरी इज कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन व्हाई द कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द सन। तो आप देख रहे हो कितनी बदमाशियां चल रही हैं। तो कंपोजिशन सन जैसा नहीं है, लेकिन कंपोजिशन इसका उस बाइनरी स्टार जैसा था जो अब नहीं रहा। अब लाओगे तो देखते हैं कि क्या होगा। सो दिस थियरी वाज व्हाट? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ऑल्दो दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड बिकॉज देयर आर मेनी क्वेरीज कि भाई वो इंट्रूडिंग स्टार कहाँ गया, टक्कर हुई थी तो क्यों 9 प्लैनेट ही बने, और ज्यादा बन सकते थे, एंड इफ इट वाज अ बाइनरी स्टार सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम what you can say collision, so some other dust will also be there. It was a star. आप समझ पा रहे हैं? सन के पास कितना मास है? 99% मास is with sun and rest of the 1% entire solar system. आपने एक स्टार को तोड़ के सोलर सिस्टम बनाया है ना? प्रोटोसन का एक बाइनरी स्टार था जिससे तोड़ के आप प्लैनेट बना रहे हो, और उसका मास बहुत कम है स्टार के हिसाब से। तो जितने में ये प्लैनेट बने वो तो बहुत एक छोटा सा पार्ट था, उस सन का 1% भी नहीं है। तो ये स्टार को आपने तोड़ा तो बाकी मास गया था। सो रसेल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस हैज सो मेनी डिमेरिट डिफेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, एक और हाइपोथेसिस आती है बच्चे, हॉयल्स की सुपरनोवा हाइपोथेसिस। इनका कहना था कि देयर वाज अ कंपेनियन स्टार एज वेल एज प्रिमिटिव सन। कंपेनियन स्टार वाज जाइंट, तो कंपेनियन स्टार बहुत बड़ा था। तो बहुत बड़ा होगा बच्चे तो इसका कोर भी बड़ा होगा, तो उसमें फ्यूजन रिएक्शन भी तेजी से होगा, तो इसकी लाइफ कम होगी। लाइफ कम होगी तो ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जल्दी चला जाएगा। तो बड़ा था, कंपेनियन स्टार वाज अ जाइंट एंड लेटर ऑन बिकेम सुपरनोवा। इसका जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ बच्चे? लॉट ऑफ डेब्रीज थ्रोन इनटू द स्पेस, और वो डेब्रीज क्या थी? डस्ट थी, हीलियम, हाइड्रोजन और इससे बनी हुई। अब ये डेब्रीज धीरे धीरे एक्रीशन हुआ इनका, एंड दे बिकम प्लैनेट, दे बिकम अर्थ एंड अदर प्लैनेट, एंड दे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दिस वाज अ हॉयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहते हैं बच्चे? अकॉर्डिंग टू हॉयल, इनिशियली
there were two stars in the universe, the primitive sun and companion star. The companion star was giant. जाइंट स्टार है तो उसमें रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा होगा, कोर बड़ा होगा, जल्दी जल्दी फ्यूजन होके वो क्या बनाएगा, लैटर स्टेज ऑफ लाइफ में जल्दी चला जाएगा। ये बड़ा ही कंक्लूसिव थियरी थी। तो हुआ कि भाई इसका सुपरनोवा हुआ। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब मैं आपको स्टेजेस ऑफ स्टार लाइफ बताऊंगा तो आई विल डिस्कस कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या होता है बच्चे। स्टार explode करता है with massive explosion and all the debris are thrown into the space and the core comes out in form of neutron star। ठीक है, तो कोर कब न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, कब व्हाइट डॉर्फ बनाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन चंद्रशेखर लिमिट, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ इतना जान ले कि जो कंपेनियन स्टार था दैट बिकेम सुपरनोवा क्योंकि इट वाज अ बिग स्टार, तो उसका लाइफ तेजी से खत्म। छोटे स्टार ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है। ओवर टाइम ऑल द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ऑफ कंपेनियन स्टार वेर कंज्यूम्ड in the process of nuclear fusion reaction. It collapsed and violently exploded. This is what the star's life. We will see how the embryo star turn into mature star, mature into red giant, and red giant into supernova. And then the latter stage of star life like white dwarf, black dwarf, or neutron star. तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो कंपेनियन स्टार था उसका सुपरनोवा बन गया। Violent explosion of companion star resulted in spread of enormous mass of dust which started revolving around the primitive sun. Dust जो निकला ये celestial dust सुपरनोवा के बाद, डेब्रीज जो थी सुपरनोवा के बाद वो क्या करने लगी बच्चे, they started revolving around the primitive sun in the form of circular disk। एक सर्कुलर डिस्क के रूप में, आप सर्कुलर डिस्क समझ रहे हो, दिस इज व्हाट सर्कुलर डिस्क, वही सिगार शेप का चक्कर है इसलिए सर्कुलर डिस्क। मास ऑफ dust which started revolving around the primitive sun in form of circular disk. The matter of this disk became building material for the formation of future। ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क, ये रहा आपका प्रोटोसन, और ये चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, and later it became the planet and universe। ठीक है, thus the planet of our solar system were formed due to condensation of the matter of the disk। This is what the supernova hypothesis by Boyle। Next one is Schmidt interstellar hypothesis। ये भी सुपरनोवा से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये बात करते हैं इंटरस्टेलर डस्ट की। According to this theory, the initial universe comprised of stars and randomly distributed matter filling up the space in between, and this is what we call interstellar dust, है ना। जो मैटर था, या तो यूनिवर्स में स्टार्स थे, स्टार क्या होते हैं जिससे लगातार एनर्जी निकल रही थी, या तो जो स्पेस था उसमें इंटरस्टेलर डस्ट भी था। ओके, इंटरस्टेलर material was there। According to Schmidt, this dark matter started to revolve around the primitive rotating sun। ये dark matter मत लिखिएगा, this is not the dark matter। According to Schmidt, this interstellar dust start revolving around the primitive sun। This is not the dark matter, ये गलत शब्द यूज कर लिया गया है। This matter you can say dark matter, तो क्या ही सन को वो engulf कर जाए। Okay, so this is what the interstellar dust started revolving around the primitive sun, and gradually matter starts accreting, condensing, and thus forming the solar system। And this matter start getting accreted and get condensed, and they form the solar system। So this interstellar dust was there, and it was in sun's gravity start revolving around the sun, and with time they get accreted, they get condensed, and they form planets, and these planets are still revolving around the sun।
though Schmidt did not explain the mode of origin of these, again dark matter, these matter are interstellar dust. Interstellar, please correct कर लीजिएगा इसे, stellar dust. This matter were called interstellar dust by Schmidt. Okay, so interstellar dust. This theory may be considered as explaining the process that preceded the nebular accretionary process of Laplace and Clairaut. तो उसी बात को ये बता रहे हैं, लेकिन दूसरे तरह से, कि इंटरस्टीलर डस्ट था, स्किमिड का इंटरस्टीलर हाइपोथेसिस। अगेन, अभी तक जितनी थियरी आपने पढ़ी, इन सब ने क्या बताया है कि देयर इज मैटर विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। किसी ने कहा मैटर सुपरनेचुरली क्रिएटेड है, किसी ने कहा प्रोटोसन वाज देयर, दैट मींस मैटर ऑलरेडी क्रिएटेड, supernova was there, that means the star was already created, there was an intruding star, that means matter was already created। ये सारी थियरी कहाँ से शुरुआत होती है? इनकी शुरुआत होती है कि मैटर का क्रिएशन हो चुका है, लेकिन मैटर कैसे क्रिएट हुआ इसके बारे में कोई थियरी नहीं बता। अब बारी आती है उस थियरी की विच इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी, जिसको आप बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली जॉर्जेस लेमाइत्रे, LAIMITER, इन्होंने प्रपोज किया था 1927 में। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। ही वॉज अ बेल्जियन फिजिसिस्ट, ही वॉज अ मॉन्क ऑल्सो, और MIT के ये ग्रेजुएट थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें इन्होंने अपनी थियरी को, अपनी सोच को दिया था कि द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी एंड आफ्टर अ ह्यूज बैंग ना। सिंगुलैरिटी से एक एक्सप्लोजन हुआ, उसी एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ बना। ये पेपर इन्होंने दिया था। लेकिन क्या होता है बच्चे, 1931 आते आते एडविन हबल अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं। एडविन हबल बताते हैं कि गैलेक्सी में रेड शिफ्ट हो रहा है। ये सब समझाऊंगा क्या है। रेड शिफ्ट हो रहा है और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यानी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये एडविन हबल 1931 में बताते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। कैलिफोर्निया में इनका अपना उस समय का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप होता है, कैलिफोर्निया में देयर इज अ माउंटेन पीक, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहीं पे एस्टेब्लिश रहती है। उससे ये हर गैलेक्सी को देखते हैं। ही ऑब्जर्व की गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और उस ऑब्जर्वेशन को ये रेड शिफ्ट बताते हैं, जिसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। तो एडविन हबल जब बताते हैं ये बात कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो उस समय आइंस्टीन, एडविन हबल, जॉर्ज लेमेइत्रे, ये सभी लोग एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो जो जॉर्ज लेमेइत्रे के गुरुजी होते हैं, जिनके अंडर में इन्होंने PhD की होती है, वो एडविन हबल को 1927 का पेपर दिखाते हैं कि भाई देखिए, मेरे स्टूडेंट ने ये बिग बैंग थियरी दी थी, आप कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन यूं ही तो होगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समवेयर इन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर टुगेदर, और वहां से एक्सपेंशन शुरू हुआ जो आज दिखाई पड़ रहा है। तो इनकी थियरी आपके एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थियरी से मेल खाती है। तो आप जरा इसे देखिए। तो जब एडविन हबल देखते हैं जॉर्ज लेमेइत्रे के सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को, तो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सही थियरी है। तब जाकर के जॉर्ज लेमेइत्रे की बिग बैंग थियरी को क्या मिलता है? ऑथेंटिकेशन मिलता है। ठीक है। सो दिस बिग बैंग थियरी talks about the process of creation of matter out of nothing, formation of everything। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बिग बैंग थियरी को किसने दिया? जॉर्ज लेमेइत्रे। ही वाज अ बेल्जियन
Georges Lemaitre, who was a Belgian physicist, and this theory was supported by Edwin Hubble, and later on there were many evidences in support of it, and that's why it is one of the most acceptable theory. ठीक है, the Big Bang theory idea was first given by Georges Lemaitre, Lemaitre, Lemaitre. In the year 1920s लिखा है, 1927 लिख लीजिएगा, 20, and was gradually contributed by many scientists, but an important role was played by Gamow in 1970 as well as Peter Higgs. Peter Higgs in 1960s में पीटर हिग्स ने सपोर्ट किया है, गैमोव ने 70s में, और एडविन हबल ने इन्हें 1931 में ही बता दिया था कि हाँ ये थियरी के लायक है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थियरी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज इमर्ज्ड फ्रॉम पॉइंट नोन एज सिंगुलैरिटी आफ्टर 13.8 billion years ago. Somewhere you will find 13.7 billion, 13.8 billion कोई था नहीं नापने के लिए, आप अप्रोक्सीमेट टाइम देख लें, ये 15 तो नहीं है. 13.8 billion years ago there was an explosion in a singularity. अब ये सिंगुलैरिटी क्या थी इसको समझिएगा. This singularity was something which was there, otherwise there was nothing. Nothing का मतलब था there was no time, there was no time, no space, न समय था न आकाश था, no matter, न कोई द्रव्य था कोई द्रव्यमान था, no light, प्रकाश भी नहीं था. भाई प्रकाश के बनने के लिए फोटॉन चाहिए, फोटॉन के बनने के लिए पार्टिकल चाहिए, मैटर ही नहीं है तो कहां से लाइट बनेगी. सो देयर वाज नो टाइम, नो स्पेस, नो मैटर, नो लाइट, नो स्टार, नो प्लैनेट, नथिंग वाज देयर, and everything confined within a small tiny ball of few centimeter diameter, and he named it singularity, जिसका नाम जॉर्ज लेमित्रे ने कहा सिंगुलैरिटी है जी, singularity. And this singularity was of infinite gravity, infinite density, and it was having infinite temperature also. And there was an explosion in this singularity, an expansion started. देखो यहाँ दिखाया गया है बिग बैंग, और यहाँ जैसे ही बिग बैंग हुआ एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ. एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ बच्चे, एनर्जी वाज रिलीज्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज रिलीज्ड, है ना, एनर्जी वाज रिलीज्ड. फाइन, चले आए, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज रिलीज्ड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इसको लिख लीजिएगा बच्चे, विद इन fraction of second. Some energy get converted into mass. Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. आइंस्टीन ने ये बात ऑलरेडी बता रखी थी, E equal to mc square. So energy released within fraction of second, some energy get converted into mass. ठीक है, ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है ये प्रोसेस जॉर्ज लेमित्रे ने नहीं बताया था. जॉर्ज लेमित्रे ने सिर्फ इतना बताया था कि एवरीथिंग कन्फाइंड विद इन अ टाइनी बॉल, देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड एनर्जी वाज रिलीज्ड and everything was created out of this released energy. यही है बिग बैंग थियरी. लेकिन प्रोसेस बताने वाले थे पीटर हिग्स. पीटर हिग्स कहते हैं कि जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुआ बच्चे, एज द एनर्जी वाज रिलीज्ड within fraction of second,
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग पीटर हिग्स ना, पीटर हिग्स जो इस पूरे प्रोसेस को बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। एनर्जी रिलीज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड some energy, not all, some energy get converted into mass, and Higgs boson were formed. Higgs boson were formed. हिग्स बोसॉन का निर्माण हो जाता है बच्चे। हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। दिस इज गॉड पार्टिकल। सो दिस गॉड पार्टिकल वेर फॉर्म्ड। और ये बात मैथमेटिकली पीटर हिग्स 1964 में आपको बता रहे हैं, जिसके लिए 2012 में इनको क्या देने वाले हैं आप, नोबेल प्राइज, 2012 नोबेल। जब इनकी बात को प्रूफ मिलेगा कैसे, वो आगे आपको बताऊंगा। So fraction of second some energy get converted into mass and Higgs boson were formed. अब क्या होगा बच्चे, हिग्स बोसॉन जिसको आप गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन gave rise to quarks and neutrino. Quarks and neutrino recombine to form electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है बच्चे, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू फर्स्ट एटम, एंड द फर्स्ट एटम वाज हीलियम। हीलियम वाज, यानी बिग बैंग से लेकर के हीलियम के बनने तक में लगभग 300,000 साल लग गए जी, 300,000 years, जिसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हिग्स बोसॉन फॉर्म क्वार्क्स न्यूट्रिनो रिकम्बाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and electron, proton, neutron recombine to form atom, and the first atom was helium. Helium क्यों बना, हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि टेम्परेचर was so high, temperature was high, and at high temperature hydrogen cannot exist. Helium is thermally stable. Helium is thermally stable. इसलिए पहला एटम क्या बना, फर्स्ट एटम वाज हीलियम। अब क्या होगा बच्चे, थर्मली स्टेबल है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, देयर वाज कूलिंग, और कूलिंग होते ही देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो। सो क्या क्या बने, हाइड्रोजन एंड हीलियम वेर। इसी को आप क्या कहते हैं बच्चे, गैसियस नेबुला। गैसियस नेबुला, हॉट गैसियस नेबुला। दुनिया के जो थियरीज आपने पढ़े वो सब कुछ यहां से शुरू होते हैं, बिग बैंग थियरी यहां तक की यात्रा को भी बताता है। यही बिग बैंग थियरी की स्पेशलिटी है। अच्छा, ये जो बातचीत आपको बिग बैंग थियरी बताएगा, इट्स नॉट लाइक कि हवाबाजी हो, इट इज व्हाट, समथिंग दैट इज हैविंग अ कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस कि हाँ इस तरह से चेंजेस होते हैं। इसी बात को सन 2012 में 2012 में क्या किया गया था बच्चे, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किया गया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। और पीटर हिग्स की इस थियरी को एक साइंटिफिक प्रूफ मिला कि हाँ अगर इस तरह से कोई बैंग हो, इस तरह से कोई एक्सप्लोजन हो, एनर्जी रिलीज हो और एनर्जी से मास कन्वर्जन हो, तो पहला जो पार्टिकल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, हिग्स बोसॉन। सो इन 2012 लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट proved
Peter Higgs theory was right. And due to this contribution, he was rewarded Physics Nobel of 2012. 2012 का नोबेल पीटर हिग्स को दिया जाता है बच्चे, क्योंकि मैथमेटिकली उन्होंने ये प्रोसेस प्रूव किया था कि इफ देयर इज एनर्जी रिलीज्ड सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हिग्स बोसॉन, दैट इज व्हाट आल्सो कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल। और जब ये बात प्रूफ हो गई एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसको आप LHCe कहते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, तो फिर बात ही क्या, फिर तो बताना ही था कि भाई आपने बहुत सही बात बताई थी। सो दिस इज व्हाट समथिंग दैट वी कॉल, कलेक्टिवली वी कॉल बिग बैंग थियरी। अब इसमें जो लिखा है, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम वेरी हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर स्टेट, दिस वाज अ मेजर कॉस्मिक explosion that have taken place 13.7 billion years ago. All the matter of the universe was thrown out, which eventually accreted to form a star, solar system and celestial body. तो ये गैसियस नेबुला बना बच्चे। अब इस गैसियस नेबुला से क्या बनेंगे? गैलेक्सी बनेंगे। और गैलेक्सी क्या होंगी बच्चे? उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, बिलियंस ऑफ स्टार्स। एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स में से कुछ स्टार का इंट्रूडिंग स्टार, बाइनरी स्टार या सुपरनोवा, किसके बाद क्या बन जाएंगे? सोलर सिस्टम बन जाएंगे, सोलर सिस्टम, है ना? So how the solar system were formed? So most of the theory, whether it is Immanuel Kant, Laplace, Chamberlain, or gaseous binary star theory, talks about creation of what you can say solar system, planet. But Big Bang theory talks about how stars, how matter was formed, how matter was created, and then how star was formed. That's why Big Bang theory is what one of the most acceptable theory in understanding the origin of universe and origin of star. Is it fine? So this is what Big Bang theory we have covered, and what were the evidence in support of it? We have redshift, cosmic background, electromagnetic radiation, which was present shortly after the Big Bang, is now observed as a background microwave radiation by a satellite that is called as COBE, Cosmic Background Explorer satellite, which was launched by NASA in the year 1989, and it has seen those background माइक्रोवेव रेडिएशन, जो कि प्रूफ करते हैं किसको? कि कभी ना कभी बिग बैंग हुआ था। अब रेड शिफ्ट कैसे प्रूफ करता है बच्चे? हाउ रेड शिफ्ट इज गोइंग टू प्रूफ दिस? एंड व्हाट इज रेड शिफ्ट? व्हाट इज एडविन हबल्स ऑब्जर्वेशन? इसको हम लोग समझेंगे कल। और कल क्लास नहीं रहेगी, द डे आफ्टर टुमारो। सो टुमारो विल बी 14th of August, 14th August। वी आर मीटिंग ऑन 15th ना, कल क्लास नहीं रहेगी। एक अल्टरनेट डे पे अभी क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ज्योग्राफी क्लास, दे आर कॉर्डियली इनवाइटेड। दिस विल बी द मोड ऑफ व्हाट यू कैन से इंस्ट्रक्शन। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर along with notes, along with discussion, I will provide you, and this will certainly help you in your preparation. So ऐसे ही करेंगे बच्चे। तो आपको ये अच्छा लगे, आपके और भी दोस्त हों जिनकी ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, या जो ऑप्शनल कुछ लेने का मन बना रहे हैं, तो आप वो वीडियो जो मैंने शेयर किया है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप उन्हें शेयर करें। उनको अगर ऐसा लगे कि हाँ सिलेबस अगर ज्योग्राफी का हम पढ़ते हैं तो lot of things are already going to be covered of general study, so they can put effort in geography, and my endeavor will certainly guide them and help them to qualify this exam with good marks. Fine. So इसको हम लोग आगे करेंगे, पढ़ेंगे। So अभी शुरुआत है तो छोटे छोटे लेक्चर्स ही रखते हैं, ताकि और भी बच्चे हों तो उनका ज़्यादा छूट न जाए। अभी एडमिशन्स आप लोगों ने शुरू कर दिए होंगे, आई होप सो। तो
अल्टरनेट डे पे अभी क्लासेस होंगी, इस हफ्ते हम लोग अल्टरनेट डे रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से विल गो फॉर द डेली क्लासेस, 1.5 hour to 2 hour class. It will be daily, 6 days in a week. I will try my best कि 6 दिन हम लोग क्लास करें, और कभी जब छुट्टी हुआ करेगी जिसमें जीएस की क्लासेस नहीं होंगी तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख लेंगे. Sure, Harshvardhan, I will share this and I would like to suggest you all कि एक जो है टेलीग्राम चैनल मैं जो है क्रिएट करता हूँ. आप लोग अब वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कहाँ दूंगा? आप लोगों को मेरा नंबर पता है क्या? नो. मेरा नंबर है बच्चे 7065273636. आप लोग व्हाट्सएप कर दें या टेलीग्राम कर दें अपना नाम, नेम एज वेल एज योर मोबाइल नंबर और आप कहाँ से हैं, कोलकाता या जहां से भी हो अपनी सिटी का नाम, ताकि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लूं ज्योग्राफी ऑप्शनल, और फिर मैं वहां पे इसे शेयर कर दूं. ठीक है, तो अगर आप मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर बच्चे, इट इज 7065, ये लिखा तो है 7065273636. ठीक है, तो आप फटाफट इस पे डिटेल भेज दें, आज ही ग्रुप क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम पे, और वहीं पे मैं इसे शेयर भी कर दूँ. ठीक है, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी विथ अखिलेश, उस पे भी हम लोग मिल सकते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जियो अखिल के नाम से, जियो अखिल, जिसको आप ज्वाइन कर लें. यहाँ भी मैं शेयर कर सकता हूँ, बट इसको मैं जीएस के लिए रखता हूँ, जनरल स्टडी. पता चला ऑप्शनल की चीजें यहाँ शेयर किया तो जीएस वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो आप, है कि नहीं. तो ऑप्शनल, इसको आप जीएस पर्पज से इसे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे. जीएस में जो भी नोट्स आपको चाहिए, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आपको काफी कुछ यहाँ पे मिल जाया करेगा. अपडेट भी करता रहता हूँ, और आपको मैं जो है करंट अफेयर की भी बहुत सारी स्टोरीज डेली अपडेट करता हूँ. तो यहाँ से आप जीएस के लिए विल फाइंड सो मेनी स्टोरी पर्टेनिंग टू ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आप यहाँ से ले सकते हैं, एंड सेंड मी योर नंबर सो दैट आई विल क्रिएट द ग्रुप. वहीं पे हम लोग इसे शेयर कर लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. वी आर मीटिंग द डे आफ्टर टुमारो, सेम टाइम. थैंक यू. थैंक यू सर. Do you know, Parveen, you just I will share the link on the Telegram which I am going to create. वहां से आप वीडियो ले सकते हैं. ठीक है, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगी. कुछ समय के बाद कुछ वीडियोस जब हो जाएंगी तो आई विल टेल यू द प्लेस दैट, क्या कहते हैं उसको, ऐप. उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहीं पे हम लोग फिर बातचीत करेंगे. इनिशियली जो 6 7 8 क्लास होंगी वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हो. ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द सेम टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप सारे लोग जुड़ जाएं, मैं सबको जोड़ लेता हूँ, एंड देन आई लेट यू नो. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.